الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا بالأبرار محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قل يا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بے شک اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے. دین انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا. کوشش یہ تھی پروردگار عالم میں جس بندے کو میں نے خلق کیا ہے کسی طرح راہ پہ آ جائے. اور اللہ اپنے بندے کے بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ گنہگار صحیح خطاکار صحیح مگر مجھ سے ایک بار رجوع کر لے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو میں اس کا رحمان و رحیم پروردگار ہوں, میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. عزیزان گرامی, اللہ نے انسان کو خلق کر دیا تو گفتگو ہو رہی تھی. انسان کو اسلام انسان بنانے کے لیے آیا ہے. اسلام انسانیت کا مذہب ہے. اب اس کے بعد اگر اسلام ہی میں کہہ دیا, قرآن نے بالکل صاف واضح باتیں کہی ہیں. اگر انسان نہ سمجھنے پہ آئے تو زبردستی تو کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, وہ مان ہی لے. تاریخ شروعاتی سے جو چلی ہے تو ظاہر سی بات ہے ابتدا جناب آدم اٹھا سے چلا, ان سے پہلے ابلیس بہکانے کے لیے آ گیا. اس نے کہا ہی ہے کہ میں صراط مستقیم کو بیٹھ کے لوگوں کو بہکاؤں گا. پورا مکالمہ ہے سنا آپ نے, اس سے پہلے میں نے پڑھا. تو وہ سارے معاملات اب آدمی اللہ کی بندگی کے لیے اللہ نے خلق کر دیا. بارہا آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ رسول مولا کائنات نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اب آپ میں جو اکثر عرض کرتا ہوں کبھی غور تو کر لیجیے, آپ اپنے اوپر غور کر لیجیے. اور اس نے تو اعلان کیا سورہ رحمان میں تو ہو رہا ہے کہ اللہ کی کون کون نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو چیزیں کائنات میں اللہ نے خلق کر دی ہیں, جو خلق کی ہو کس کے لیے خلق کی ہیں, انسان ہی کے لیے. تو وہ اس نے ایک غرض خلقت بیان کی ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. اب عزیزان گرامی, اللہ نے یہ ہاتھ دے دیے, پیر دے دیے, دل دے دیا, دماغ دے دیا, بولنے والی زبان دے دی, دیکھنے والی آنکھیں دے دی, دھڑکنے والا دل دے دیا, سوچنے والا دماغ دے دیا. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد اگر انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہمارا ہے, انسان کو اپنی ایک سانس پہ بھی حکومت ہے, کہ اس کے اوپر قابو ہے کہ وہ چاہے تو اس کی جو سانس نکل رہی ہے اس کو اندر کر لے, یا جو سانس اندر چلی گئی ہے وہ باہر کر لے. انسان کو اپنے جسم کے اوپر تو حکومت اللہ نے عطا نہیں کی, کیونکہ آزاد تو کر دیا ہے, مگر اگر خدا نہ چاہے تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. اور جب اتنی بڑی کائنات, اتنا جسمانی کائنات دے دی اور سجا کہ یہ پوری کائنات تم آپ کے انسان کس لیے رکھتی, اور دیکھیے اس بات پہ انسان خوش ہو جائے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد لوگ میرا کچھ نہیں ہوتا ہے, چلیے ٹھیک ہے آپ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. فرعون آپ سے زیادہ گنہگار تھا تو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا. رزق تو اللہ نے اس کا بھی نہیں بند کیا موسیٰ کے کہنے کے بعد.
और जो कुछ है जाने के लिए अल्लाह चाहता है किसी तरह अपना इंसान राह रास्त पे आ जाए। तो वाकई छोटा सा आपके खिदमत में अर्ज करूँ, ये अक्सर होता है कि जब हमारे दरमियान में लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि कहते हैं हम क्या बताएं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और अल्लाह हमारी नहीं सुनता है। अल्लाह देखो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, अल्लाह झूठ भी बोलता है और उसकी हर एक बात सुनी जा रही है। जो भी अल्लाह से कहता है वो उसमें मवाद देता है। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिलसिला रिसालत की एक अहम कड़ी है। इनके दो बेटे हैं, जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल और जनाब इसहाक। जनाब इसहाक जिनसे अंबिया बनी इसराइल हैं, जो जनाब इसहाक से सिलसिला शुरू हुआ जनाब ईसा तक आया, और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो नबीउल्लाह हैं, उनकी यादगार आप मनाते हैं। एक दो पढ़े मोहम्मद वाले यादगार आप मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं कि अल्लाह की राह में जनाब इब्राहीम ने ख्वाब देखा था। सिलसिले में शायद मैंने आपको एक दिन अर्ज़ किया था कि जनाब इब्राहीम ने ये ख्वाब देखा था, रब्बुल भाई, वो ख्वाब ये देखा था कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूँ। ये ख्वाब नहीं देखा था कि मैंने अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर दिया। ख्वाब देखा था कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। बेटे से कहा, बेटे ने कहा कि आप जो आपको हुक्म हुआ है वो आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जनाब इब्राहीम ले गए और बेटे को ज़िबा करने की कोशिश की। वो पूरा इरादा था। तब अल्लाह ने कहा कर सदक़त रोया इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखा। यानी जो ज़िबा करने का हुक्म दिया था, आप ज़िबा कर रहे थे, वो दुम्बा आ गया और इब्राहीम बच गए। तो इसके नतीजे में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नहीं, जब सिलसिला हिदायत के वो नबी हैं कि इनको नबूवत मिली है, ये उलुल अज़्म पैगम्बर हैं, बड़े नबियों में शुमार है, साहिब शरीयत पैगम्बर हैं। इनको अल्लाह ने अपना खलील कहा, अपना दोस्त कहा है। और इनको अल्लाह ने उससे पहले अल्लाह ने जब इम्तिहान में जनाब इब्राहीम को मुब्तला किया, तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुम्बिया चरा रहे थे। आज बकरी चराने जाए तो आदमी मजाक मरता है। पैगम्बर अज़ीज़ान गिरामी हलाल तरीके से रिज़्क़ हासिल करने का हुक्म दिया है शरीयत ने। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े मगर जायज़ तरीके से रिज़्क़ हासिल करेंगे। जब जायज़ तरीके से रिज़्क़ हासिल करेंगे तब आपके अंदर अल्लाह अपने परवरदिगार की, उसके बनाए हुए हाथी की मारिफत भी होगी। क्योंकि मामला वहीं बिगड़ता है जहाँ हराम बढ़ जाता है। जब इंसान हराम के ऊपर ज़्यादा मुसिर हो जाता है तो अल्लाह उसके हिदायत के रास्ते बंद कर देता है। तो ये है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब चलिए बात की ये वाक़या सुन लीजिए और बात को खत्म कर दूँ क्योंकि वक्त काफ़ी हो चुका है और गर्मी भी ज़्यादा है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैंने आपको खत्म किया कि नबी हैं, साहिब शरीयत पैगम्बर हैं, उलुल अज़्म हैं, अल्लाह के खलील हैं और रहमतुल लिल आलमीन के मोरसे आला हैं। जनाब इस्माइल के ज़रिए रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हुई है और जनाब इसहाक से नस्ल बनी इसराइल चली है। जो हम क्या है बनी इसराइल का पूरा सिलसिला, यानी दोनों सिलसिलों के जाके जहाँ मिलते हैं वो ज़ात है जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इमाम बनाया है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन अपने किसी हमारे आपके पाँच इमाम मोहम्मद बाकी एक दिन ये अपने किसी काम से निकले, जा रहे थे, सहरा में पहुँचे, गैर आबाद जगह पे। जब ये बात कर रहे थे लम्हू बिल्कुल चटियल मैदान जैसा समझ लीजिए, वहाँ देखा कि एक शख्स इबादत में मसरूफ़ था। वो अल्लाह की इबादत कर नमाज में मशगूल है, पढ़ रहा है। अब कितना बड़ा आबिद होगा। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना होता रहेगा। ग्रुप पढ़े मोहम्मद
नमाज पढ़ रहे थे। अब कैसा आबिद होगा जो आज पैगंबर मुतवज्जे हो गया, नमाज पढ़ रहा ये आदमी बड़ा जुलूस के साथ खालिस नियत से अपने परवरदिगार की इबादत कर रहा है। ऐसा तो देखा ही नहीं किसी का, कितना इश्क में डूब के नमाज पढ़ रहा है अल्लाह की। जनाब इब्राहिम ने सोचा चलो इससे मुलाकात किया जाए। जनाब इब्राहिम आए, उसके पास खड़े हो गए, जब नमाज तमाम करें तो हम उससे कुछ गुफ्तगू शुरू करें, बात करें। उसकी नमाज खत्म ही नहीं हो रही। जनाब इब्राहिम से इंतजार करके फिर वहीं बैठ गए। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका इंतजार करते करते जब उसने नमाज तमाम की तो जनाब इब्राहिम मुतवज्जे हुए। क्या है भाई बताओ, मैंने देखा तुम बहुत तो बड़े इश्क में डूब के नमाज पढ़े थे, मगर ये तो बताओ तुम नमाज किसकी पढ़ रहे थे? तुम नमाज किसकी पढ़ रहे थे? नमाज तो तुम बहुत देखा कि तुम बिल्कुल दुनिया माफिया से बिल्कुल कोई परवाह नहीं, बिल्कुल अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे, कुछ किसी चीज़ की उनको परवाह नहीं थी, मगर इबादत कर किसकी रहे थे? तो उसने कहा कि मैं इब्राहिम के परवरदिगार की इबादत कर रहा था। इसी वजह से नाम सुना यही है युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखना। अब इसको पता ही नहीं है कि हम बात किससे कर रहे हैं, मगर बता रहा है कि इब्राहिम के खुदा की इबादत कर रहा था। नाम सुना था इब्राहिम की नबूवत का ऐलान सुना था नबी के। अज़ीज़ान गिरामी, मारिफत होना कमाल है, वो दूर होके भी हो सकती है और वज़न में रह के भी इंसान कोरा का कोरा रह सकता है। दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे जनाब उज़ैर के साथ जब उनको शक हुआ कि दिल में ख्याल आया, नबी थे, शक तो कर नहीं सकते, नबी थे, और ये ख्याल आया कि अल्लाह मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, और गए तो गधे पे जा रहे थे तो गधे के बांधा और घाट में पहुंचे और नींद आ गई, सो गए और वहीं पे गधा भी रह गया, सो गया और उसको कीड़ों ने खा के मिट्टी का ढेर कर दिया। और जनाबे उज़ैर अलैहिस्सलाम वहीं पे लेटे सोया किए। जब 300 साल के बाद आँख खुली, जब सांप क्या खुली, जब मसनत परवरदिगार हुई तो उनको जगाया गया। अब 300 साल का ज़माना बहुत हो गया जाने ग्रामी। अब उसके बाद जब देखा तो कहा कि ये सोचा कि कितना सोए, तो देखा कि सूरज थोड़ा चल रहा था। जब सोए तो दोपहर का वक्त कहा थोड़ा ही सोया होंगे। तो जब देखा तो कहा कि ज़रा अपने गधे की खबर लो। और जब गधे की देखा तो वो पता चला गधा कहाँ चला गया। तो कहा आवाज़ तो, जब आवाज़ किया तो मिट्टी का ढेर गधा बन के उठा। नबी के साथ 300 साल तक बगल में पड़ा रहा, नबी नबी रह गया, गधा गधा ही रह गया। ज़र्फ होता है जो कबूल कर लेता है, और जिस जानवर ने ज़र्फ को कबूल कर लिया तो उसने अपने आका की मंजिल को पहचान के, चाहे वो रसूल की सवारी हो कि जाके मदीने में रुकी हो, चाहे वो अमीरुल मोमिनीन की सवारी हो जाके सिफीन में रुकी हो, या मजलूम करबला की सवारी हो जाके करबला में रुकी हो। सब जानवर एक जैसे भी नहीं है। अल्लाह ने कहा जिस तरह इंसान एक जैसे नहीं, कि जानवर जो इनके तसर्रुफ में आ गया तो इंसानों से ज्यादा कमाल तो जानवरों ने किए हैं। अल्लाह ने ग्रामी। तो अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा उससे कि ये बताइए कि तुम किसकी इबादत कर रहे थे? तो कहा मैं इब्राहिम के खुदा की इबादत कर रहा था। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इब्राहिम का खुदा है कौन? इब्राहिम का खुदा है कौन? तो कहा वो इब्राहिम का खुदा हुआ है जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने तुम्हें पैदा किया, इस पूरी कायनात को जिसने खल्क किया, वो इब्राहिम का खुदा है। जनाब इब्राहिम की बात तो तुमने सही कही, और तुम्हारी और ये भी है कि तुमने कोई धोखे में किसी खुदा को सजदा नहीं किया, जानबूझ के मार्फत के साथ सजदा करते हो। तुम वाकई लायके ताज़ीम, लायके तहसीन हो, मुबारकबाद हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बिरादरी कायम करूँ खुदा के खुशनुदी के लिए, और तुमसे बिरादरी कायम कर लूँ, दोस्ती कर लूँ, और जब मेरा दिल चाहे तुमसे मुलाकात के लिए, मैं तुमसे मुलाकात के लिए आ जाया करूँगा। तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि भाई ये तो ठीक है तुम्हारी बात, बिरादरी तो हम साथ आपकी कायम हो जाएगी,
या आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए मुझसे बरादरी कायम करना चाहते हैं, मुझे भाई बनाना चाहते हैं, वो तो सारा मामला ठीक है, मगर मैं जहाँ रहता हूँ वो समंदर का एक जजीरा है, समंदर के बीच में एक जजीरा है और उसी पे मेरा घर है। मगर मुश्किल ये है कि वहाँ जाने का कोई साधन नहीं है, न कोई पुल है, न कोई नाव है, न कोई दूसरा जरिया है जिसके जरिए से उस जजीरे तक जाया जा सके। तो जनाब इब्राहिम ने पूछा तो फिर जब कोई जरिया नहीं तो तुम कैसे जाते हो? तो कहा कि हमको अल्लाह ने वो कुदरत अता कर दी कि हम पानी पे ही चले जाते हैं। ये आम आबिद की बात हो रही है और जिसके लिए अल्लाह ने कुल कायनात को मुसख्खर किया हो, अब वो समझ में अहले बैत ही नहीं आते हैं, क्योंकि दुश्मनी अहले बैत ने इंसान के कल्बों को अंधा कर दिया है। अगर खुली हुई निगाहों से देखें तो रहमत इससे बड़ा मुर्दा और क्या होगा, खुद ही मुर्दे को लेकर, खुद ही जिंदे को मुर्दा बना के लाए। अब आप सोचिए, खुद ही तो लेके आए। अमीरुल मोमिनीन ने तो कहा नहीं था कि लाओ हम ये कमाल दिखाएंगे, ये मौजूदा दिखाएंगे, खुद ही लेके आए। कहा कि ये दावा कर रहे हैं मुझे ज़मीन से ज़्यादा आसमान की राहों से हम वाकिफ़ है। सलूनी का दावा करने के बाद लेके मुर्दा आ गए, कहा कि नमाज पढ़ा दीजिए। मौला कायनात ने पूछा नमाज पढ़ा, तो कहा पढ़ा दीजिए। जब पढ़ा दिया, आप जैसे तकबीर कही उसकी रूह कब्ज़ हो गई। अब अजीज़ आने के लिए ये मंजर तो खुद ही तुमने इस मौजूदे को अमीरुल मोमिनीन को दुनिया के सामने पेश किया। अब इसके बाद भी न मानो तो मैंने आपकी परसों की मजलिस में कहा था कि जो गैर हलाली होगा अली उसके न दिल में उतर सकते हैं न दिमाग में समा सकते हैं। अजीज़ आने ग्रामी, तो ये सारी चीज़ें तो आँखों से आपने देखी, दुनिया ने देखी। जो मंजर मौलाए कायनात ने मुर्दे को जिंदे को नमाज पढ़ाई, मुर्दा हुआ और मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा किया, ये सारा तो उम्मत ने खुद ही कराया अली से। अली ने खुद थोड़ी दावा किया, अली तो दावा इल्म कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे जोर दिया इस्लाम ने तो इल्म के ऊपर जोर दिया है। और इस्लाम नहीं चाहता है कि कोई मुसलमान जाहिल रह सके, कम से कम मसलन। और रहमतुल आलमीन ने वाजिब तो नहीं करार दिया, क्योंकि वाजिब करार देता तो जाहिर बात है बड़ी मुश्किल पैदा होते। तो इल्म के लिए वाजिब तो नहीं है, बल्कि रहमतुल आलमीन ने उसको वाजिब से कम भी नहीं कर पाना है। इस्लाम क्या फरमाया कि इल्म का हासिल करना तमाम मर्द मुस्लिम और मर्द औरतों के लिए वाजिब है। रहमतुल आलमीन की हदीस है, हुक्म नहीं है। रहमतुल आलमीन ने कहा कि तमाम मुसलमान मर्द औरतों के लिए इल्म का हासिल करना फर्ज है, फर्ज है, वाजिब नहीं, फर्ज है, यानी जरूरी है कि इल्म हासिल करें, चाहे उसके लिए तुमको चीन तक जाना पड़े, क्योंकि दुश्वार गुजार रास्ता था उस वक्त चीन जाने का, इसलिए उसका जिक्र किया। उससे मुराद तमाम उलमा ने नजफ़ अशरफ को भी लिया है कि रसूल का मंशा नजफ़ अशरफ में था, जो इल्म का, इल्म अदब का मरकज है, रहा था, है और रहेगा, क्योंकि बाबे मदीनतुल इल्म उसी जमीन में आराम कर रहा है। कुछ बड़े मोहम्मद वाले और रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की आगोश से, मान नहीं कब्र की आगोश तक, यानी जिंदगी भर इल्म हासिल करते रहोगे, मगर इल्म खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि आप पूरी कुल सलूनी का दावा करने का इंसान में सकत नहीं है, और जिसने किया है वो मुंह की खा गया। ये जिसके लिए अल्लाह ने मखसूस कर दिया था दावा, ये दावा उसी पे जेब देता है कि मिंबर पर बैठ के सलूनी सलूनी कबलन तफिरूनी, जो चाहो मुझसे पूछो, कब इसके तुम मुझे खो दो या मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊँ। मगर उसके बाद निकले कर दो कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। इल्म हासिल करो माँ की आगोश से कब्र की आगोश तक। अजीज आने ग्रामी, अब अगर मुसलमान जाहिल है तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? इस्लाम ने मुतलकन हुक्म दे दिया नमाज का। अब नमाज 17 रकत भी है, नमाज 51 रकत भी है, और उसके अलावा भी तमाम नमाजें हैं। आप नमाज जोहर की 4 रकत पढ़िए, नाफिला 8 रकत है। नमाज असर 4 रकत पढ़िए, नाफिला अरमान 8 रकत है। मगरिब की 3 रकत पढ़िए, नाफिला 4 रकत है असर की, मगर 11 रकत नमाज शब है। अब ये सिर्फ चीज़ें न पढ़िए, अब इतनी पढ़िए तो आप, अल्लाह आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा वो जज़ा दे देगा। भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह की जितनी इबादत करेंगे, क्योंकि उसकी गर्ज़ खिलकत यही है। और इबादत से वो तो पूरा एक अलग मौजू की इबादत से नमाज ही मुराद नहीं है। पूरी इंसान अल्लाह की राह में अपने बच्चों का रिज़्क़ भी हासिल कर रहा है, वो भी इबादत ही में शुमार होता है।
तो अजीज़ान गिरामी, अब अगर आप नहीं कर सकते हैं, नमाजें सब नहीं पढ़ सकते हैं, नाफिला नहीं पढ़ सकते, मगर 17 रकत से तो छूट नहीं है, 17 रकत तो नहीं। अब आप बहुत बड़े इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं बन सकते, बहुत बड़े मुज्तहिद आज़म नहीं बन सकते हैं, तो अपने दुनियावी ज़रूरी मसाइल का इल्म तो हासिल ही कर सकते हैं। दूर पढ़िए मोहम्मद ज़रूरी जितना आपको ज़रूरत है उतना इल्म तो आप हासिल ही कर सकते हैं। अगर आप इतना ही इल्म हासिल कर पाएंगे तो फिर मामला आप जाने, और मामला तो आपके तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहेंगे, क्योंकि जो आपको पता ही नहीं है किसी बारे में। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जो इस बारे में नहीं जानते हो वो लोगों से, जो जानते हैं उनसे मालूम कर लो। तो अब जिसकी नज़र में जो मोतबर हो उससे उस बात को मालूम कर ले। तो अज़ीज़ान गिरामी, इल्म इंसान को बुलंदी अता करता है। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसके पास पहुंचे तो कहा ठीक है चलो। अर्ज करने का मकसद ये था कि अगर आप नाफिला नहीं पढ़ सकते हैं तो 17 रकत वाजिब तो आपको पढ़नी है। तो आप बहुत ज़्यादा इल्म ना हासिल कर सके तो अपनी ज़रूरत भर इल्म तो हासिल कर ले, उससे आपको छुटकारा नहीं है। ये कह के वहाँ फुर्सत न मिल पाएगी कि हम जाहिल थे, क्योंकि अपने मामले में कोई जाहिल नहीं होता है। और शरीयत में इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फ़र्ज है, इसलिए अपने ज़रूरी मसाइल का इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब इब्राहिम बात वापस आए उसी पे कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं चाहता हूँ मैं बरादरी कायम करूँ और तुमसे मिलना आया करूँ। उसने कहा कि हम तो जजीरे पर रहते हैं, वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, न कोई साधन है, न कोई नाव है, न ऐसा कोई जरिया। तो कहा कि जिस तरह तुम जाते हो चलो, हो सकता है हम भी चले जाएं। उठ के दोनों चल दिए। अब वो आबिद आगे बढ़ा, उसने बिस्मिल्लाह कहा और पानी पे चलने लगा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह कहा और वो भी पानी पे चलने लगे। अब जब इसने पलट के देखा कि यार ये आदमी तो पानी पे जैसे हम जा रहे हैं वैसे ये भी आ रहा है, तो समझ गया कि कोई मामूली आदमी तो लग नहीं रहा है, यह है कोई अल्लाह का खास बंदा। जैसे अल्लाह ने मेरे लिए पानी को मुसख्खर कर दिया, अब इसके लिए भी पानी मुसख्खर है, उसी पे चला जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह को कोई खास बंदा है। अब वो दोनों उस जजीरे पे पहुंच गए। अब जब जजीरे पे पहुंचे तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये बताओ भाई कि तुम यहाँ खाते पीते क्या हो, यहाँ कुछ दिखाई तो देता नहीं, कोई आबादी नहीं, अकेले तुम हो, खाते पीते क्या हो। उसने देख पेड़ की तरफ इशारा किया, कहा कि ये जो दरख्त दिखाई देता है इसी का मेवा इकट्ठा करता हूँ, साल भर इत्मीनान से खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह की इबादत करता रहता हूँ। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके बाद कहा कि अच्छा भाई ये बताओ कि दिनों में सबसे सख्त तरीन दिन कौन सा है। जनाब इब्राहिम को एहसास हो गया कि यह आदमी साहिब मारिफत है, इससे गुफ्तगू की जा सकती है। कहा कि यह बताओ दिनों में सबसे सख्त दिन कौन सा है। उसने कहा कि सबसे सख्त दिन वो है जिस दिन अल्लाह लोगों का हिसाब किताब करेगा और उनको उसकी जज़ा और सज़ा देगा, यानी रोज़ क़यामत। तो जनाब इब्राहिम ने कहा भाई आओ फिर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से रोज़ क़यामत तक जितने मोमिनीन मोमिनात हैं उनको उनके गुनाहों को रोज़ क़यामत बख्श दे। तो इसने कहा कि यार अरे भाई ये तो आप सही, मगर मैं किस मुंह से दुआ करूं, मैं तो दुआ न करूंगा हरगिज़। जनाब इब्राहिम पूछा क्यों। कहा एक दुआ 3 साल से कर रहा हूं और वो दुआ आज तक पूरी नहीं हुई मेरी। एक दुआ 3 साल हो गए करते हो मुझे मुसलसल, और हर नमाज में करता हूँ, और वो दुआ आज तक पूरी नहीं हुई। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अपने परवरदिगार की बारगाह में दूसरी दुआ भी कर दूँ, जो अभी न पूरी हो तो अच्छा नहीं मालूम होता, मुझे शर्मिंदगी मालूम होती है कि एक दुआ पूरी नहीं हुई, मैं दूसरी दुआ परवरदिगार की बारगाह में कर दूँ। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई सुन, अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है, जिस बंदे को अल्लाह दोस्त रखता है, जब वो बंदा अल्लाह का वो बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में कोई अपनी हाजत बयान करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को महफूज कर लेता है। और खुदा चाहता है कि मेरा ये बंदा मुझसे बार बार इल्तिजा करे और मैं इसकी आवाज़ को सुनता रहूं, मैं इसकी आवाज़ को सुनता रहूं, ये बार बार मुझसे मांगता रहे।
اور اللہ جس بندے کو ناپسند کرتا ہے جب وہ اب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ اس کا جو مانگتا ہے اسے فوراً پورا کر دیتا ہے، یا اس کے دل میں مایوسی ڈال دیتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر پروردگار کی طرف رجوع ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اچھا بھائی یہ تو بتاؤ کہ تمہاری وہ دعا کیا ہے جو تم 3 سال سے مسلسل کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا دعا سے معمولی سے ایک، میں 3 سال سے خدا سے کہہ رہا ہوں کہ کسی طرح اپنے خلیل ابراہیم خلیل الرحمان کی زیارت کرا دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت کرا دے۔ جیسے اتنا سنا تو کہا کہ بس تیری دعا تو اللہ نے قبول کر لی، تو نے 3 سال اللہ نے تیری گفتگو کو سنا، آج ابراہیم خلیل خود چل کے تیرے پاس آیا ہے، میں ہی تو ابراہیم خلیل خدا ہوں۔ اتنا سنا تو سمجھ لیجئے کہ جس کے لیے 3 سال سے آدمی مسلسل دعا کر رہا ہو، وہ محبوب جب سامنے کھڑا ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی آدمی کوئی چیز مانگ رہا ہے، اچانک وہ کافی دن سے پریشان ہو اور ایک دم مل جائے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ جلدی سے اٹھاؤ، گلے میں باہیں ڈال دی، اور باہیں ڈال کے بعد رخساروں کا بھی بوسہ لے رہا ہے، ہاتھوں کا بھی بوسہ لے رہا ہے، اور لپٹا جا رہا ہے، پیروں کا بوسہ لے کہا ہاں یار ابراہیم خلیل اللہ آپ دعا کریے، میں آمین کہہ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور تمام پاک کے 5ویں امام نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے ہمارے جد خلیل کی، کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، کہا کہ پالنے والے آج سے قیامت تک کے آنے والے تمام مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، اور روز محشر ان کی دقتوں کو آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور تم 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے تمام چاہنے والوں کے لیے ہمارے جد خلیل کی دعا پشت پناہ ہے کہ اگر میرا کوئی چاہنے والا گنہگار ہے تو روز محشر میرے جد کی دعا کے طفیل میں بدلہ اسے بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، اور اس قوم کے لیے نعرے حیدری، نعرے سلوات، چاہنے والوں کے لیے، حسین کے چاہنے والوں کے لیے ابراہیم کی دعا، جناب ابراہیم کی دعا کے ساتھ ساتھ رحمت للعالمین کی دعا ہے، جس کی ذمہ داری خاتون محشر نے بھی لی ہے کہ وہ چاہنے والوں کو بخشیں۔ چاہنے والوں کو چاہیے کہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اپنے کردار کو تھوڑا سا بہتر بنا دیں۔ آج 5 محرم الحرام ہے عزیزان گرامی، کسی میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا، بزرگوں سے سنا ہے، جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کتنی قیامت کی تاریخ ہے۔ جناب ثانیہ زہرا، صبح آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن جعفر سے جناب ثانیہ زہرا کی شادی ہوئی تھی۔ جب رشتہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے دیا، جعفر طیار بہت سخی آدمی تھے۔ جب ابو ہریرہ جیسا راوی لکھتا ہے کہ بہت غربہ پرور تھے جناب جعفر طیار، اور اپنے گھر میں لے جاتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا وہ سب کو کھلا دیتے تھے، حتیٰ کہ جو روغن کی تیل کی شیشی گھی ہوئی شیشی تھی اس کو بھی ہم لوگ چاٹ کے صاف کر دیتے تھے، بھوکے ہوتے تھے۔ مگر عبداللہ ابن جعفر سب کچھ جو بھی گھر میں ہوتا تھا وہ فقراء و مساکین کو، اور یہ اصحاب صفہ جو تھے جس میں یہ چبوترے پہ رہنے والے اصحاب، ان کی سب کی کفالت بہت زیادہ مدد کرتے تھے وہ غربا مساکین کی۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر بہت بڑے بزنس مین، آپ تاجر تھے، جن کی مصر میں بھی پراپرٹی تھی، شام میں بھی پراپرٹی تھی، اور عرب کے مختلف علاقوں میں جناب عبداللہ ابن جعفر کا تمام کاروبار اور تمام پراپرٹی تھی۔ اسی پراپرٹی کی وجہ سے جناب ثانیہ زہرا مصر بھی گئی ہیں بعد شہادت حسین، اور اسی اپنے شوہر کی پراپرٹی کی وجہ سے شام بھی گئی ہیں۔ تو شام میں بھی پراپرٹی ان کی تھی اور بہت بڑے تاجر تھے۔ جب عبداللہ ابن جعفر نے پیغام دیا تو امیر کائنات نے عبداللہ ابن جعفر کو بلایا، کہا ہے عبداللہ تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ چچا بھی تھے، خاندان ہی کا معاملہ تھا، کہا چچا جان بتائیں۔ اور جناب عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں جناب جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا تو ہم جب اپنے چچا مولا کائنات کے پاس جاتے تھے تو کچھ چیز مانگتے تھے، اگر میرے چچا علی منع کر دیتے تھے تو ہم ان سے کہتے کہ چچا آپ کو عبداللہ، آپ کو جعفر طیار کا واسطہ، آپ مجھے
ये चीज़ अता कर दीजिए। तो कहते थे कि मौला कायनात मना करने के बावजूद भी वो चीज़ अता कर देते थे, क्योंकि शहादत के दर्जे पे जनाब जाफर तैयार फायज हुए थे। तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे चचा जब हम उनको अपने बाबा का वास्ता दे देते थे वसीला, तो मेरे चचा फिर उस बात को मना नहीं करते थे। तो अब्दुल्ला इब्न जाफर को बुला के मेरे मौला ने कहा कि अब्दुल्ला, तुमसे कुछ गुफ्तगू करने तुमने रिश्ता दिया, रिश्ता तो ठीक है, मैं मंजूर करता हूँ, मगर चंद बातें हैं उसको मैं तुमको बता देना चाहता हूँ। कहा चचा वो क्या है? कहा देखो अब्दुल्ला, दुनिया में बाप बेटे बहुत गुजरे, मगर याकूब और यूसुफ जैसा बाप बेटा कोई नहीं गुजरा है। याकूब और यूसुफ जैसे बाप बेटे नहीं गुजरे जो मोहब्बत याकूब को यूसुफ से थी। दुनिया में बेटी और बाप बहुत गुजरे हैं, मगर जो मोहब्बत और इखलास रसूल को अपनी बेटी से था, कायनात में किसी बाप को अपनी बेटी से नहीं था, न बेटी को बाप से। और अब्दुल्ला इब्न जाफर, दुनिया में भाई बहन बहुत गुजरे हैं, मगर हुसैन और ज़ैनब जैसा भाई बहन कोई नहीं है। इसलिए मैं तुमको बुलाया, मैं अब तो कर दूंगा, मगर कल को अगर मेरा लाल हुसैन मदीना छोड़ने लगे और सफर अख्तियार करे, तो तुम मेरी बेटी को रोकना नहीं बल्कि जाने की इजाजत दे देना। अब्दुल्ला इब्न जाफर राजी हो गए, अक्द हो गया। अक्द होने के बाद जनाबे सानिया ज़हरा रुखसत होके अपने शौहर के घर चली गई। मैंने आपके खिदमत किया, मैंने पढ़ा नहीं, बुजुर्गों से सुनी हुई रवायत पढ़ रहा हूँ। तो अरब का दस्तूर ये था कि 3 दिन के बाद माँ बेटी के घर खैरियत पूछने जाती थी। बेटी की शादी हो गई, रुखसती हो गई, 3 दिन के बाद माँ जाती थी खैरियत पूछने बेटी की। मगर यहाँ मजबूरी ये है कि शहजादी कौनैन इस वक्त मौजूद नहीं है, और जब बेटी को रुखसत कर दिया मेरे मौला ने, जब तीसरा दिन आया होगा तो शहजादी कौनैन मौला को बहुत याद आई होंगी। उस वक्त फातिमा अमली को बहुत याद आई होंगी कि आज अगर दुख्तरे रसूल होती तो अपनी बेटी के ससुराल अपनी बेटी की खैरियत पूछने जाती। मगर शहजादी कौनैन आज मौजूद नहीं है। तो मौलाए कायनात ने फिज़्ज़ा को बुलाया, क्या है फिज़्ज़ा, जाओ, अगर ज़ैनब की माँ नहीं है, मगर तुमने तो माँ की तरीके से ज़ैनब को पाला है, तुम जाओ ज़ैनब की खैरियत लेके आओ। जनाबे फिज़्ज़ा अपने घर से निकली और जनाब अब्दुल्ला के घर में दाखिल हुई। जाके तो देखा तो सानिया ज़हरा मुसल्ला इबादत पे थी, और जब नमाज से फारुग हुई माँ को देखा तो फफक के रो पड़ी। सानिया ज़हरा के बिलक के रोना था कि फिज़्ज़ा ने बढ़ के गले से लगा लिया कि बेटी, दिलासा देना शुरू किया। यही बात सबके जहन में कि माँ याद आ रही होगी कि आज अगर मेरी माँ होती तो मुझसे मिलने के लिए आती, माँ फिज़्ज़ा मिलने के लिए आई हैं। जनाब फिज़्ज़ा ने दिलासा देना शुरू किया कि माँ नहीं सही, मगर मैं तो आई हूँ। तो जनाब सानिया ज़हरा ने पलट के एक बार फिज़्ज़ा को देखा, कहे अम्मा फिज़्ज़ा, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं अपनी माँ सैयदा को याद कर रही हूँ? तो सब चौंक गए। कहा नहीं, हाँ बेटी, यही मैं समझ रही हूँ, बताइए तुम क्या कहना चाहते हो? कहा अम्मा फिज़्ज़ा, मैं अपने माँ फातिमा को नहीं याद कर रही हूँ, बल्कि आज 3 दिन हो गए मैंने अपने माजाए हुसैन को नहीं देखा है। दिल अब काबू में नहीं है, सीने से दिल बाहर निकलना चाहता है। भाई की मोहब्बत में लगता है कि अब जिससे रूह परवाज कर जाएगी अगर मैंने हुसैन को चलना में न देखा। इतना सुनना था कि फिज़्ज़ा फौरन अब्दुल्ला के घर से निकली। अब जब ये उधर का मंजर था, जैसे अमीरुल मोमिनीन के घर में दाखिल हुई तो देखा यहाँ शोर गिरिया बुलंद है। पूछा क्या हुआ? कहा हुसैन की आंख लगी हुई थी और हुसैन ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा, है मेरे लाल हुसैन, अब मेरी ज़ैनब इससे ज्यादा जुदाई फुरकत बर्दाश्त न कर पाएगी, जल्दी से मेरी ज़ैनब के पास चला जा। हुसैन रोते हुए उठे, क्योंकि
जनाब ज़ैनब छोटी थी, हुसैन बड़े थे। अब जनाब अमीर ने बुलाया, कहा कि जिसको दिल चाहे वो ज़ैनब से मुलाकात के लिए जा सकता है। पूरा काफिला तैयार हो गया। जनाब मजलूम करबला का सीन अच्छा खासा था, मगर जब चला तो समाज बुजुर्ग बयान करते हैं कि इस तरह मजलूम करबला दौड़ रहे थे जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा हो, और जाके भाई ने बहन के गले में बाहें डाल दी। बहन भाई से लिपट गई, ए भैया आज 3 दिन के बाद तुमसे मुलाकात हुई, ए भैया अब ऐसा न करना वरना ज़ैनब जिंदा न रह पाएगी। मगर हाँ दादारो, वो ज़ैनब अपने भाई को बचाने के लिए अपने नौनिहालों को कुर्बान कर दिया। ज़ैनब करबला के मैदान में भाई की लाश तक पहुंच गई। तिले ज़ैनबिया पे खड़ी होकर ऐलान कर रही है, ऐ पिसरे साद तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़िबा हो रहा है। सानिया ज़हरा इमाम ने इशारा किया, वापस आई, मगर कई बार मैदान में गई। अजब नहीं और मोहम्मद के लाशों ने आवाज दिया हो, आए अम्मा इसी करबला के बियाबान में हमारी लाशें भी पड़ी है, एक बार मेरी लाश पे भी आ जाइए। मगर सानिया ज़हरा अपने भैया की मैयत पे तो गई, मगर कोई रवायत नहीं लिखती कि ये मोहम्मद की तरफ गई हो। ये काफिला करबला से शाम पहुंच गया, रिहाई हो गई। अज़ादारों, करबला से जब शाम में रिहाई हुई, सरहाय सोहदा आने लगे। शाम की औरतें आई तो सारे के सारे सर कोई न कोई बीबी लिए थी। उम्मे नैना अली अकबर का सर लिए थी, कासिम का सर उम्मे फरवा लिए थी, मजलूम करबला का सर लेके जनाब सानिया ज़हरा गिरिया कर रही थी। 2 सर बचे हुए तख्त में रखे थे। शाम की औरतों ने पूछा क्या फिजा से, ऐ बीबी क्या इस काफिले में इन बच्चों की माँ नहीं है? सानिया ज़हरा ने पलट के देखा, कहा बीबी इंसाफ से बताओ कि मैं जिमका ज़ैनब अपने बच्चों के रोने के लिए जिंदा हूँ, मैं अपने भैया का मातम करूँ या अपने बच्चों का मातम करूँ? जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो। सानिया ज़हरा करबला आई, वापस आई, मदीने पहुंच गई। अब्दुल्ला इब्न जाफर ने कहा, ऐ सैयद सज्जाद जरा अपनी फूफी को घर भेज दीजिए, मुझे कुछ मालूमात करना है। पूछा कि सफर में क्या गुजरी? जनाब सानिया ज़हरा अब्दुल्ला इब्न जाफर ने रवायत लिखा कि जैसे ही सैने खाना में दाखिल हुई अज़ादारो, जो बीवी अपने बच्चों को करबला में न रो सकी, जो शाम के कैद खाने में छूटने के बाद अपने बच्चों का मातम न कर सकी, सानिया ज़हरा जब अपने घर में दाखिल हुई, सामने मुसल्ले नजर आए, पलट के करबला का रुख किया, ऐ मेरे लाल और मोहम्मद, माँ कैद खाने से छूट के मदीने आ गई, ये छोटे छोटे मुसल्ले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐ मेरे लाल, अरे तुम भूखे प्यासे दुनिया से सिधार गए। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।